محمدیہ سلیم ہیڈلائنز آپ جانے بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ صدر عارف الوی صدارت کی مدت پوری ہونے پر عہدہ نہ چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ صدر کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر اور ان کے اہل خانہ نے تاحال ایوان صدر خالی کرنے کا اشارہ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ صدر عارف الوی کی اکتوبر تک مصروفیات کا شیڈول بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ صدر عارف الوی صدارت کی مدت پوری ہونے پر عہدہ نہ چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ صدر کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے، مگر ذرائع کا بتانا ہے کہ صدر اور ان کے اہل خانہ نے ابھی تک ایوان صدر خالی کرنے کی طرف کوئی اشارہ نہیں دیا ہے۔ ابراہیم راجہ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ابراہیم بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آ پائی ہیں؟ میعاد ختم ہو رہی ہے، ابھی تک گھر خالی نہیں کیا ہے؟ جی دیکھیے، صدر عارف الوی کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب صدر کی اکتوبر تک جو مصروفیات ہیں ان کا ایک اسکیجول تیار کر لیا گیا ہے، اور ایوان صدر کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صدر عارف الوی 17 ستمبر کو نئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے حلف بھی لیں گے۔ اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ کی حلف برداری کی جو تقریب ہے اس کو باقاعدہ صدر عارف الوی کے اسکیجول میں شامل کر لیا گیا ہے۔ صدر اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے ایوان صدر خالی کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا، کسی قسم کی کوئی پیکنگ نہیں ہو رہی۔ اس کے سوا ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اکتوبر میں بھی صدر عارف الوی کی جو سرکاری تقریبات میں مصروفیات ہیں ان کی بھی ایک فہرست مرتب کر لی گئی ہے، لیکن صدر کو پچھلے ہفتے حساس قومی امور پر ایک اہم پیغام بھی پہنچایا گیا تھا، اور اس لیے صدر اپنا عہدہ چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ اہم ملاقاتوں کے پس منظر میں کریں گے۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ صدارتی انتخاب کے لیے جو آپ کا الیکٹورل کالج ہے یہ نئی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے قیام پر ہی مکمل ہوتا ہے، اور الیکٹورل کالج مکمل ہونے تک صدر اپنے عہدے پر آئینی طور پر فائز رہ سکتے ہیں اگر وہ خود استعفیٰ دینے کا فیصلہ نہ کریں تو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ سنائیں گے، مختصر فیصلہ سنانے کی تاریخ جلد بتائیں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس سمرتا بندیال نے کہا کہ ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے۔ نیب ترامیم کا مقصد یہ ہوا سزا یافتہ مجرم کہے گا میری سزا ختم اور پیسے واپس کرو۔ جسٹس سمرتا بندیال کا کہنا تھا کہ نیب قانون کو واضح ہونا چاہیے تھا۔ سوال کیا کہ کیا مبہم قانون قائم رہ سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ قوانین واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے چالاکی اور بدنیتی پر مبنی قانون بنایا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی میں پی آئی بی تھانے کی حدود میں مبینہ ڈکیتی کے دوران تشدد سے 18 سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی۔ مقتولہ کی بہن اقرا کا بیان سامنے آ گیا۔ اقرا کا کہنا ہے کہ بہن کو گیس سلنڈر کا پائپ منہ میں ڈال کر مارا گیا، جبکہ جسم پر چھریوں کے نشانات بھی تھے۔ مول میں گزشتہ 4 روز سے مغویوں کی بازیابی کے لیے دھرنا جاری ہے۔ 4 روز گزرنے کے باوجود مظاہرین سے کوئی بھی اعلیٰ افسر مذاکرات کرنے نہیں پہنچا۔ اس وقت زبیر احمد دھرنے کے مقام پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ زبیر بتائیے گا، 4 روز گزر چکے ہیں، کوئی نہیں پہنچا ہے مذاکرات کے لیے؟ بالکل، ضلع کشمور سے اغوا ہونے والے مغویوں کی بازیابی کے لیے گزشتہ 4 دنوں سے دھرنا جاری ہے۔ دھرنے کے باعث سندھ پنجاب بلوچستان کو مسلسل گاڑیوں کی آمد رفت مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے۔ دھرنے میں اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں شہری اور مختلف علاقوں سے جو شہری ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ تاہم دھرنے کے شرکاء سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ گزشتہ رات تو 3 مغوی بازیاب ہوئے تھے، تاہم 15 سے زائد مزید مغوی ہیں ڈاکوؤں کے چنگل میں ہیں، جن میں ساگر کمار، نازیہ، کوثر سمیت دیگر مغوی شامل ہیں، جن کی بازیابی بھی پولیس کو یقینی بنانی چاہیے۔ تاہم دھرنے کے شرکاء نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹس آئی جی سندھ اور وزیر اعظم نگران نوٹس لیں اور جو مغوی ڈاکوؤں کے پاس ہیں ان کو بھی بازیاب کروایا جائے۔ تاہم گزشتہ 4 دنوں سے یہاں پر شرکاء سے کوئی بھی اعلیٰ عملدار مذاکرات کرنے کے لیے نہیں پہنچا، جس کے باعث یہاں کے جو سندھ پنجاب بلوچستان کو آنے اور جانے والے گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کر کے دھرنا ختم کرایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ روپے کی تیزی سے گردی قدر کے باعث سرمایہ کار محتاط ہیں۔
स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छा रहे हैं और दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 215 पॉइंट्स की कमी पर मार्केट बंद हुई है। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ खान, बताइएगा क्या बता रहे हैं माहिरीन? जी, आज फाइनेंशियल मार्केट की मैं रिपोर्ट बताऊं कि आज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का दिन रहा है, जबकि बुनियादी चीज़ आई कि बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। इसके बावजूद जो है सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 100 इंडेक्स 215 पॉइंट कमी से 45,000 जो है 491 की सतह पे बंद हुआ है। मजमूई तौर पर देखा जाए जो शेयर्स की फ़रोख्त हुई है उस पर सरमायाकारों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसकी बुनियादी वजह ये हुई कि रुपए की कदर में इंटरबैंक मार्केट में जो एक बार फिर कमी देखी गई है। डॉलर ने नया रिकॉर्ड इंटरबैंक में बना दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.46 महंगा हो गया है और मुल्क की तारीख में पहली बार ₹307.10 की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। इसकी बुनियादी वजह बताई जा रही है कि अगस्त में जो दरामदी बिल है वो बढ़कर $4.5 अरब पे पहुंच गया, जिसकी वजह से जो डॉलर की तलब बढ़ गई है, साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए कि ओपन मार्केट में जो है बिल्कुल उल्टा असर देखा गया है, क्योंकि क्रैकडाउन की बातें हो रही थी और वो अब नजर आ रहा है कि गुजरावाला और रावलपिंडी में जो है एक्सचेंज कंपनी में जो है पुलिस एहलकार और जो FIA के लोग जो तैनात हुए हैं, उसके बाद जो ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर एक ही दिन में 5 से 6 रुपए सस्ता हो गया, 328 रुपए से गिर कर जो है 323 रुपए तक गिर गया। इसका असर दीगर करेंसी पे भी हुआ और यहाँ पे जो एक्सचेंज कंपनी के जो एसोसिएशन के जो सदर हैं मलिक बोस्तान का कहना है कि जो डॉलर की होल्डिंग करने वाले थे वो अब परेशान हो गए, डॉलर फरोख्त कर रहे हैं और डॉलर की जो सप्लाई भी बेहतर हो गई और डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की बातें जो हमने की थी उसके बाद जो है अब क्रैकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ऊपर मार्केट में डॉलर की कदर में कमी हुई है। इसके साथ ही मैं बताता चलूँ डॉलर के साथ दीगर करेंसी भी जो सस्ती हुई है। यहाँ पे डॉलर जो देखा जाए 5 से 6 रुपए सस्ता हुआ है। साथ ही दीगर करेंसी में बात करें तो बरतानी पाउंड 7 रुपए सस्ता हुआ है, एक ही दिन में 410 रुपए तक गिर गया। यूरो में सबसे ज्यादा कमी हुई, 14 रुपए सस्ता होगा, 343.50 रुपए का हो गया और इमारती दिरहम 3 रुपए सस्ता हुआ है, 88.80 पर आ गया। सऊदी रियाल भी 2 रुपए एक दिन में सस्ता हुआ है, 86 रुपए में मिलने लगा और यहाँ पे फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में मजीद जो है डॉलर सस्ता होगा। ओपन मार्केट में ऐसा लग रहा है कि डॉलर 10 रुपए तक मजीद सस्ता हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस भी उनके हमरा थे। रहनुमाओं ने अमरीकी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के मौक़े, इंसानी हकूक़ के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन और मुल्क से मुलाकात का अहवाल जानते हैं। जी मोहसिन। जी मदिया, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रंप से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मौके पर लाहौर में होने वाली मुलाकात के मौके पर अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस भी मौजूद थे। इस दो तरफा मुलाकात में काफ़ी गर्मजोशी देखी गई और रहनुमाओं ने अमरीकी तजारत और सरमायाकारी में इजाफे के मौके और इंसानी हकूक़ के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मदिया, मजहबी अक़लियतों की बुनियादी आज़ादियों के हवाले से भी ये मुलाकात अहम रही और इस अहमियत को उजागर किया गया कि जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर जो है वो चला जाए। दोनों रहनुमाओं ने इस पर इत्तफाक किया। सफ़ीर ब्लूम ने ये भी कहा कि इक़्तिसादी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी जो है वो दोनों ममालिक की इस वक्त एक पहचान है और अरसे से पाकिस्तान और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और ये पार्टनरशिप आगे भी चलेगी। मदिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अहम खबर देंगे, परवेज इलाही को रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, परवेज इलाही को रिहाई का हुक्म जारी हुआ था और रिहा करते ही उन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया जा चुका है। परवेज इलाही को रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही को पुलिस लाइंस के मरकजी दरवाजे से गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को ATS और सादा मलबूस एहलकार गिरफ्तार करके ले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही परवेज इलाही को रिहा करने के अहकामात जारी किए थे और रिहाई के फौरन बाद ही उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यही जा रहा है कि पुलिस लाइंस के मरकजी दरवाजे से उन्हें गिरफ्तार किया है। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा, एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है?
जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को एक दफा फिर से पुलिस लाइन इस्लामाबाद के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज अदालत की जानिब से उनकी रिहाई के आर्डर जारी हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे कि परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ताहम वो पुलिस लाइन्स में थे। उनके वकीला की टीम आज उनको लेने के लिए पुलिस लाइन्स पहुंची थी। उनके पास रोजगार भी थे। पहले तो उनकी लीगल टीम को 30 मिनट तक पुलिस लाइन्स के दरवाजे पर रोका गया, फिर उसके बाद उनकी लीगल टीम रोककर लेकर पुलिस लाइन्स के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही वो परवेज इलाही को लेकर निकले हैं, इस पे बाकायदा तौर पर जो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस है उनका मैसेज भी जारी कर दिया गया था कि परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है और वो घर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन वहां पर मौजूद पहले से ही सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार थे, आया वो इस्लामाबाद पुलिस के थे या पंजाब पुलिस के थे या उनका ताल्लुक किसी और टीम से था, यह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन जो फुटेजेज हैं उनके मुताबिक एक दफा उनको फिर से पुलिस लाइन इस्लामाबाद के बाहर का जो दरवाजा है खारजी, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फरजाना, किस मुकदमे में गिरफ्तारी की गई है? उनके पास कोई नोटिस था, कुछ बताया उन्होंने? जी अभी तक ये हकायक सामने नहीं आ सके कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल में जब परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की जानिब से बताया गया था कि उनको 16 MPO कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन चूंकि अब ये गिरफ्तारी सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने की है, उनका ताल्लुक कौन से सूबे की पुलिस से था ये भी वाज़ेह नहीं हो सका और किस मुकदमे में था ये चीजें भी अभी तक सामने नहीं आ सकी और ज़राए भी इसकी तस्दीक करने से अभी तक इनकारी हैं। जैसे ही कुछ देर गुजरेगी उसके बाद ही हाल वाज़ेह हो सकेगी और न ही पुलिस की जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ दिया जा सका है। लेकिन चूंकि वहां पर मीडिया टीम मौजूद थी, कैमरे मौजूद थे, तो उनके सामने जो है वो परवेज इलाही की गिरफ्तारी अमल में। तो फरजाना, इतना बड़ा ये बात हो गई कि 2 एहलकार जो कि वर्दी में भी नहीं थे उन्हें लेकर चले गए हैं, दोबारा से गिरफ्तार करके ले गए हैं, मगर उनकी जानिब से कुछ बताया नहीं गया। तो पुलिस और जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार थे उन्होंने भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की? जी उन्होंने कुछ जानने की तो यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कुछ बताया नहीं गया और ना ही ये बताया जा रहा है कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। आया उनको सिक्योरिटी पर्पज से हिरासत में ले लिया गया है या उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और उनको हिरासत में लेने वाले लोग कौन से थे, FIA के थे, नैब के थे, पंजाब पुलिस से थे या इस्लामाबाद पुलिस से उनका ताल्लुक था, ये चीज भी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का मर्कजी दरवाजा है, जैसे ही वो अपने वकील के साथ बाहर निकले हैं, वकील की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई कि परवेज इलाही उनके साथ हैं, वो रिहा हो चुके हैं और इसकी फोटेज भी उनके वकील ने खुद दी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा उनकी गाड़ी को 4 कदम आगे गई है तो वहां पर सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार थे उन्होंने रोका है और परवेज इलाही को फौरी तौर पर हिरासत में भी ले लिया है। जी ठीक है फरजाना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। परवेज इलाही को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें रिहाई का हुक्म दिया गया था, मगर इस्लामाबाद पुलिस 16 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले आई थी। आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया था, मगर उन्हें पुलिस लाइन्स के गेट से ही गिरफ्तार कर लिया गया है एक बार फिर से। परवेज इलाही को ATS और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार गिरफ्तार करके ले गए हैं। कहाँ लेके गए हैं, किस मुकदमे में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इस हवाले से पुलिस की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही परवेज इलाही को रिहा करने के अहकामात जारी किए थे और इस वक्त आपको अपडेट करते चलें कि रिहाई होने के बाद एक बार फिर से ATS और सादा लिबास में मलबूस एहलकार उन्हें गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं और पुलिस की जानिब से भी कुछ नहीं बताया गया है कि उन्हें किस मकाम पर लेके जाया जा रहा है या फिर किस मुकदमे में अभी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। फरजाना सदीक, आपकी किसी से बात हो पाई हो, किसी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ पाया हो अभी तक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो इनके तर्जुमान हैं जानिब से ये मौक़िफ़ बाकायदा तौर पर ऑफिशियली जारी किया गया है कि परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है और इस वक्त वो घर के लिए रवाना हो चुके हैं। एक जानिब तो उनकी तरफ से ऑफिशियली तौर पर यह मौक़िफ़ जारी किया गया, लेकिन दूसरी जानिब एक दफा फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, उनको किस सूबे की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये सूरत हाल अभी तक जो है वाज़ेह नहीं हो सकी है। ये बताते चले कि जो कवानीन है 3 MPO के, उसके तहत परवेज इलाही को चंद रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से इस्लामाबाद
इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद वो अटक जेल में थे। गुज़िश्ता रोज उनकी तबीयत खराब होने पर उनको अटक जेल से पिंड हॉस्पिटल भी लाया गया था, वहां पर उनका तिबी मुआयना मुकम्मल किया गया था। तो इसी दौरान जो इनके वकील है वो न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनकी रिहाई के लिए रजू कर चुके थे और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम दिए गए थे कि परवेज इलाही को फौरी तौर पर आज के दिन में अदालत पेश किया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए थे और बाकायदा तौर पर जो उनके वकील हैं उनको ये हदायत की थी कि जो परवेज इलाही है वो अपना कोई भी बयान नहीं देंगे लेकिन उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जिसके बाद परवेज इलाही को पुलिस लाइन इस्लामाबाद में लाके रखा गया था। उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने अदालत से परवेज इलाही की रिहाई की रोबकार हासिल की और उसके बाद वो पुलिस लाइन इस्लामाबाद पहुंचे थे। उनकी लीगल टीम वहां पे 30 मिनट रुकी रही और उसके बाद इनको पुलिस लाइन में अंदर होने की इजाजत मिली। उनकी जानिब से रोबकार पुलिस को दिखाई गई, जिस पर जो वहां पे पुलिस थी उन्होंने परवेज इलाही को रिहा कर दिया। जैसे ही उनके वकील परवेज इलाही को लेकर पुलिस लाइन से बाहर निकले हैं उन्होंने रुककर थोड़ी सी मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका कहना था कि परवेज इलाही उनके साथ हैं, वो उनको लेकर घर की जानिब रवाना हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी थोड़ा सा लेकर आगे बढ़ी है, जैसे गाड़ी ने चंद कदम का फासला तय किया है, वहां पर मौजूद पहले से सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने रोका है और उनको एक दफा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी तक जो है वो गिरफ्तारी मानने से इनकारी है क्योंकि तर्जुमान पुलिस की जानिब से ऑफिशियल तौर पर तो ये मौक़िफ़ जारी कर दिया गया है कि वो रिहाई पा चुके हैं। लेकिन जो वहाँ पे कैमरे थे, कैमरों के सामने उनको हिरासत में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस हवाले से अभी तक पुलिस का कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। फरजाना सदीक, किस केस के हवाले से आपसे डिटेल्स जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन की आसानी के लिए, नाजरीन के लिए बताइएगा कि किस मुकदमे के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था जब लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया है और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें यहाँ ले आई है, तफसीलन ज़रा बताइएगा। जी, अभी मैं आपको आपके पहले सवाल का भी जवाब दे दूं। अभी दीपक के दौरान ये तर्जुमान पुलिस की जानिब से एक दफा फिर से ये मौक़िफ़ जारी कर दिया गया है कि परवेज इलाही को जी फरजाना, आप सुन पा रही हैं? गिरफ्तार किया है। फरजाना सदीक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, राब्ता बहाल होगा तो मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही को रिहा होते ही दोबारा से गिरफ्तार किया जा चुका है। ATS और सादा लिबास में मलबूस एहलकार उन्हें गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं और किस मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है अभी तक पुलिस की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। पुलिस लाइन्स के मरकजी दरवाजे से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया है। पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना करार दिए गए हैं। बताया गया है कि हुक्म इम्तना खत्म न हुए तो चीनी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा इसके हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, ये एक रिपोर्ट जो हुकूमत को भिजवाई गई है, इसमें चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह जो करार दी गई है वो लाहौर हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना है और कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का जो नोटिफिकेशन था उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। अगर हम लाहौर हाई कोर्ट के केस की बात करेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट में आज केस की समाअत हुई है चीनी की कीमतों के हवाले से। तो लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से दायर दरखास्त पर आज समाअत हुई थी, जिसमें अदालत में पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है, जबकि अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी है और साथ ही अदालत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से रोकने के हुक्म में तोसी कर दी है, यानी कि केन कमिश्नर को यह हदायत की है कि वो मुशावरत का अमल शुगर मिल मालकान से जारी रखे, लेकिन चीनी की कीमतें मुकर्रर नहीं करेंगे ताहुक्म सानी। मजीद जस्टिस अनवार हुसैन ने ये मामला जो है चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का वो 2 रुकनी बेंच को भिजवाते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी के बाद चावल और दालें भी महंगी हुई हैं। मुल्तान में चावल की होलसेल कीमत में 500 रुपये मन और दालों में 1300 रुपये फी मन तक इजाफा हुआ है। फराज रमज़ान से अपडेट्स देंगे। जी फराज, बताइएगा।
जी बिल्कुल महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। होलसेल मार्केट गला मंडी में अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो चीनी के बाद जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में मिला है। इसी तरह अगर चावल की बात करते चलें तो चावल की जो है वो फ़ी मन कीमत में 500 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। सेला कायनात की अगर बात करते चलें तो सेला कायनात की कीमत में भी जो है वो 500 रुपये का इजाफा हुआ है। इजाफे के बाद जो है वो 11,000 रुपये से मनकर जो है वो 11,500 रुपये फ़ी मन होलसेल मार्केट में सेला कायनात चावल जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब कच्ची कायनात की बात करते चलें तो कच्ची कायनात का जो इस वक्त जो रेट है 10,800 रुपये से बढ़कर जो है वो 11,300 रुपये में जो है वो होलसेल मार्केट गला मंडी में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसी के साथ साथ दालों की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो दाल की कीमतों में भी जो है वो 600 रुपये से लेकर जो है वो 1,300 रुपये फ़ी मन कीमतों में इजाफा देखने में मिला है। दाल चना की बात करते चलें तो दाल चना जो है वो 7600 रुपये फ़ी मन से बढ़कर 8,200 रुपये फ़ी मन इस वक्त जो है वो होलसेल मार्केट गला मंडी में फ़रोख्त की जा रही है। अगर इसी के साथ साथ दाल मसूर से की कीमतों के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो दाल मसूर की कीमत जो है वो शुक्रिया आपका।